بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سدا برستی رہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع رہے گا کہ سیٹلائٹس کیا ہیں، یہ کہاں سے لانچ کیے جاتے ہیں، کیسے لانچ ہوتے ہیں، اور ان کا پرائمری اور سیکنڈری جو پرپز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان کی کون کون سی اقسام ہیں، اور پاکستان نے اب تک اس فیلڈ میں کیا کچھ کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سیٹلائٹ جو ہے اصل میں یہ بہت بڑے آبجیکٹ کا نام ہے جو اپنے کسی خاص مدار میں، یعنی عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جیو اسٹیشنری آربٹس، یعنی جو زمین کے گرد آربٹس گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بات کی جائے سیٹلائٹ کی تو سیٹلائٹ کی بیسیکلی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے قدرتی سیٹلائٹس اور دوسرے ہیں مصنوعی سیٹلائٹس۔ قدرتی سیٹلائٹ تو زمین کا جو قدرتی سیٹلائٹ ہے وہ چاند ہے، یعنی چاند ایک اسپیسیفک آربٹ میں زمین کے گرد گردش کرتا رہتا ہے، جبکہ جو مصنوعی سیٹلائٹس ہیں ان کی بیسیکلی تین اقسام ہیں۔ LEO یعنی لو ارتھ آربٹس، اس کے بعد ہے MEO میڈیم ارتھ آربٹس، اور تیسری اقسام ہے جیو اسٹیشنری آربٹس۔ پاکستان میں جو اس معاملے میں ریسرچ ہو رہی ہے، اسپیس ٹیکنالوجی پہ جو کام ہو رہا ہے، سیٹلائٹس ٹیکنالوجی پر، اس کا سب سے جو بڑا ذمہ دار ادارہ ہے وہ سپارکو ہے، یعنی پاکستان نے سپارکو کو یہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہے۔ سپارکو مینز اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن ہے، جبکہ اس کے جو کہنے کے ذیلی ادارے ہیں ان میں IST ہے، جسے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ یہ سیٹلائٹس ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں، تو یہ عام طور پر مواصلاتی نظام کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، نیویگیشن کے لیے، GPS جیسے ہم لوکیشن وغیرہ ڈھونڈنی ہو اس کے لیے، ایگریکلچر سیکٹر میں، یعنی ایگریکلچر میں اس کے مختلف مقاصد ہیں، اس کے علاوہ ویدر فور کاسٹنگ میں، اور سب سے بڑا جو اس کا مقصد ہے وہ ہے کہ جب دشمن پر نظر و حرکت اس کی جو حرکات و سکنات ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں LEO کی، لو ارتھ آربٹ کی، تو ان کی رینج تقریباً 200 سے 2000 کلومیٹر ہوتی ہے، یعنی 200 سے 2000 کلومیٹر کی رینج میں انہیں زمین کے گرد کسی مدار میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور بھی دلچسپ بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ سیٹلائٹ کو پورے منتھ میں کسی وقت بھی لانچ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے صرف کوئی مخصوص وقت ہوتا ہے، 1 یا 2 دن پورے منتھ میں ہوتے ہیں جب ونڈو اوپن ہوتی ہے، تو اسی وقت آپ اسی اسپیسیفک ٹائم میں ہی آپ سیٹلائٹ کو لانچ کروا سکتے ہیں زمین کے گرد، ادروائز 1 منتھ پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسرا سیٹلائٹ ہے میڈیم ارتھ آربٹ۔ میڈیم ارتھ آربٹس جو ہیں یہ 20,000 کلومیٹر سے 35,786 کلومیٹر کی رینج میں لانچ کروائے جا سکتے ہیں، جبکہ تیسرے آربٹس جو ہیں جیو اسٹیشنری آربٹس یہ 35,786 کلومیٹر سے اوپر یہ کسی مدار میں زمین کے گرد لانچ کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر لو ارتھ آربٹ کی بات کی جائے تو یہ عام طور پر جو
इमेजेस भेजे जाते हैं जमीन पर कंट्रोल सेंटर में, या फिर मवासलाती जो सैटेलाइट्स हैं उसके तौर पर ये काम करते हैं। जबकि जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं वो नेविगेशन के लिए, जीपीएस के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब भी हमने आजकल जैसे गूगल से हम लोकेशन ढूंढते हैं तो उसका जो जिम्मेदार है वो MEO होते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, जो ये जिम्मेदारी सर अंजाम देते हैं। तीसरे जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सबसे ऊपर वाली सतह पर आमतौर पर लॉन्च करवाए जाते हैं, तकरीबन 35,786 किलोमीटर से ऊपर। ये मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में हमें बताते हैं कि किस इलाके में किस दिन बारिश होगी, बादल किस सतह से आ रहे हैं, किस सम्मत से आ रहे हैं, और किस इलाके में आंधी आएगी वगैरह वगैरह। यानी वेदर फोरकास्टिंग के लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टेली मवासलात, यानी जो हम चैनल्स देखते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स, न्यूज चैनल्स या दूसरे चैनल्स, उनकी जो नशरियात होती हैं वो सारी की सारी इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू ही वो आ रही होती है। आने वाले दिनों में, बल्कि अभी तो काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब सैटेलाइट्स फोन आम हो जाएंगे तो उनका राब्ता भी सैटेलाइट के थ्रू ही होगा। यानी जो हमारे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने अपने खंबे लगाए हुए हैं, फिर इनके फंक्शंस खत्म हो जाएंगे, डायरेक्ट हमारा जो सेल फोन है वो उसका ताल्लुक बन जाएगा सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट के थ्रू ही हम राब्ता कर सकेंगे किसी जगह पर। अब देखते हैं कि इनके क़याम और जो इस्तेहकाम है कि ये क्यों इतनी इतनी देर, इतने लंबे अरसे तक अपने मदार में घूमते रहते हैं और अपना प्रॉपर फंक्शन करते रहते हैं, जमीन पर अपनी जो मालूमात, मतलूबा मालूमात होती है वो भेजते रहते हैं। इसमें दो फैक्टर सबसे अहम है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इन्हें हम जब लॉन्च करवा देते हैं मदार में तो दो फोर्सेस बैक वक्त रिस्पॉन्सिबल बन जाती हैं इनको अपने ही मदार में रखने और अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। इसके अलावा तीसरी जो चीज है, जैसा कि हमें पता है कि खला में फ्रिक्शन तकरीबन ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से ये बगैर किसी रुकावट के सैटेलाइट्स अपने मदार में घूमते रहते हैं, अपना फंक्शन करते रहते हैं और मतलूबा रिजल्ट्स जो होते हैं वो अर्थ पर मौजूद जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है इनका, उस तक अपनी मालूमात भेजते रहते हैं बगैर किसी इंटरप्शन के। थोड़ा सा आगे चलें कि अभी जो पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले यानी 31 जुलाई को अपना एक सैटेलाइट जो है वो चाइना के लॉन्चिंग पैड से, शियान चेंग ऐसा कोई नाम है, शायद मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से ना कर सकूं, उधर से 31 जुलाई को अपना एक लो ऑर्बिट जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद ही वो जाकर अपने सैटेलाइट अपने मदार में फिट हो गया और घूमना शुरू कर दिया, उसने प्रॉपर वर्किंग शुरू कर दी है। अब तो माशाल्लाह अपने इमेजेस भेज रहा है प्रॉपर किस्म के, क्योंकि उसमें हाई रेजोल्यूशन के कैमरास लगाए गए हैं, जिसकी वजह से साफ और वाज़ेह तस्वीरें भेज रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, जिसकी हमें जरूरत होगी। उसकी अगर बात की जाए तो ये एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट है जो तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर की रेंज में से भेजा गया है। इसका अगर प्रॉपर पूरा नाम देखा जाए तो इसका पूरा नाम है PRSC, पूरा नाम है PRSC-EO1, मतलब कि पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है ये, जिसे पिछले ही दिनों पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। इसके जो हैरत कुन, इसके जो फैक्टर्स हैं, हैरान कुन जो इसके कहने के हकीकतें हैं, अगर मैं वो आपसे शेयर करूं तो सैटेलाइट्स की जो स्पीड होती है वो आमतौर पर 7.5 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में सैटेलाइट जो है वो 7.5 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। अगर इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करके देखें
तो 1 मिनट में सैटेलाइट तकरीबन 450 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं 1 मिनट में। और अगर दोबारा से इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 घंटे में सैटेलाइट्स जो होते हैं ये तकरीबन 27,000 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखते हैं। यूं एक सैटेलाइट जो है वो तकरीबन 90 मिनट से लेकर 100 मिनट तक 1.5 घंटे के आसपास वो जमीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है। यानी एक सैटेलाइट जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे में अपना जो चक्कर है वो जमीन के गिर्द मुकम्मल कर लेता है। और एक मंथ में जो सैटेलाइट है वो एक दिन में एक सैटेलाइट एक दिन में तकरीबन 14 से 16 बार अपना चक्कर मुकम्मल करता है। यूं वो जमीन के हर खित्ते की, हर इलाके की जो मालूमात है वो लम्हा बलम्हा अपने कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को भेजता रहता है। जमीन के मुख्तलिफ इलाकों में जो तब्दीलियां आ रही होती हैं या मौसमियाती तब्दीलियां हो या किसी भी किस्म की मालूमात लेनी हो तो सैटेलाइट्स मसलसल मुतवातर अपनी मालूमात जमीन पर भेजते रहते हैं। पाकिस्तान का ये जो अब कामयाब तरीके से लॉन्च किया गया है सैटेलाइट, इसके बाद अगले और भी मिशन हैं जिस पर पाकिस्तान बड़ी ही कह लें कि मेहनत से पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इससे भी अच्छी जो खुशखबरियां हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ना सिर्फ इस फील्ड में बल्कि हर फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजी की हर फील्ड में पाकिस्तान को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से नवाजे और पाकिस्तान ऐसे ही तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता जाए। आमीन। इसी दुआ के साथ आखिर पर पाकिस्तान की सलामती के लिए नारा लगाएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद।